Comrade Chairman and comrades and friends, when we look back at the life of Comrade Sitaram Yechuri, the thing that strikes one is the power of Marxism. Sitaram Yechuri, when he joined the Jawaharlal Nehru University as a student in 1973, he came from a upper middle class background. His parents were both government officers. One of his grandfathers became the Chief Justice of the High Court. His maternal uncle became the Chief Secretary in Andhra Pradesh, of the Andhra Pradesh government. And he himself was a brilliant student throughout his academic career. So normally one would have expected a person like Sitaram to do well academically in the university which was then just been set up. And as one of his contemporaries wrote in a tribute to him, that he would have been expected to become an IAS officer or a top executive in a corporate sector or even a banker. But that's not what happened. Sitaram became a revolutionary. And that's because he became acquainted with Marxism and grasped Marxist theory within the first year of his joining JNU. The fact that he had outstanding Marxist economists as his professors helped in his grasping Marxist theory very quickly. He had professors like Prabhat Patnaik, Krishna Bharadwaj, and many others in the economics faculty of JNU. And while he imbibed Marxist theory there, it was not just an academic pursuit. By joining the Students' Federation of India, he also began applying this Marxist understanding in practice, in the movement. And if you look at the entire political life of Sitaram Yechuri, that is the most outstanding feature, that he became a committed Marxist and he put this deep understanding of Marxism into his political life and activities. I have known Sitaram since 1973-74. That is 50 years. And when we traverse the whole 5 decades of his life as a communist, I have tried
to grasp what has been his distinctive contributions and role in the Communist Party of India Marxist. First as a cadre of the party, then emerging as a leading cadre of the party, and then becoming the topmost leader of the party. And there, the first distinctive contribution of Comrade Sitaram was to the ideological basis of our party. As a Marxist-Leninist party, the CPIM from the outset strove to independently apply Marxism-Leninism, to understand our own Indian society and conditions of India, and to understand the world around us. And the first serious attempt at shaping our ideological foundations of the party was the Burdwan Plenum, which was held in 1968, which, according to me, made the CPIM distinctive from all other communist streams in the country, because it broke with the traditional reliance on the Soviet Communist Party and its brand of Marxism. And it also critiqued what was then the alternative to the Soviet model of Marxism, which was put out by the Chinese Communist Party. So the CPIM struck out on an independent path. And Comrade Sitaram inherited this. And when he came into the leadership of the party as a member of the Central Committee and later in the Politburo, his first distinctive contribution was to develop this Marxist-Leninist ideological understanding of the party. At a time when the Soviet Union had been dismantled, when worldwide it was claimed that Marxism is dead and socialism is over, it fell upon Comrade Sitaram primarily in our collective leadership to formulate our ideological understanding in the new situation in the world and in the international communist movement. And that was encapsulated or found in the resolution he moved in the 14th Congress of the party in 1992, which was held at Madras at that time. So here was a young man who had come into the Central Committee of the party just 6-7 years before, who the party saw as the fittest person to steer the ideological resolution of the party, which was going to be our underpinnings
in this new post-Soviet Union world. That itself shows the rapid development of Sitaram as a person who could carry forward the ideological understanding of the Communist Party of India, Marxist, who could review and discard what is irrelevant or become obsolete in our understanding and strike out, if necessary, on a new path. Now, this will not be possible unless you have a mastery over Marxist theory and practice. And that is something which Sitaram had throughout his life as a leader of the CPM. And when we felt that many developments have taken place in the world which requires us to update our ideological understanding. So in 2012, once more, we relied on Comrade Sitaram to present our new updated ideological document before the party congress then, which was held in Kozhikode in Kerala. Because Sitaram was the most qualified to understand what has happened in the world capitalist system with the onset of neoliberalism, with the development of international finance capital, how it has impacted on imperialism and the way it is exploiting the world today. So if you look at that resolution, you'll find an entire portion of that resolution updating our understanding of finance-driven imperialist globalization and how neoliberalism has affected the world and our own country. Now, what he learned in JNU, his economics, that economics was, as I said, not bourgeois economics. He learned Marxist economics. And that stood him in good stead throughout his life. So, there has to be another time when we can fully assess, evaluate what Comrade Sitaram Yechury's life and work as a communist, as a leader of the CPIM has meant. And we need a fuller, more comprehensive assessment that cannot be done at present. But having worked with him closely for 5 decades, and out of which more than 3 decades in the party center and in the Politburo, the second feature or the second aspect, I'm only speaking in English. If you want, I can speak in Hindi also. तो कॉमरेड सीताराम के जो बहुमुखी योगदान है उसके बारे में आज हम पूरी तरह मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए समय की जरूरत है। लेकिन उनका दूसरा बड़ा योगदान कम्युनिस्ट और वामपंथी आंदोलन के लिए वो है हमारे देश
के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती अभी है, हिंदुत्व के जो विचारधारा है और उनका जो फांसीवादी जो विचारधारा है, उसका सही आकलन करना, मूल्यांकन करना, उसमें कॉमरेड सीताराम का बड़ा योगदान रहा है। अभी जो हमने वीडियो देखा उसमें भी जिक्र है, 1993 में कॉमरेड सीताराम ने एक छोटी सी किताब लिखा था। वो था गोलवालकर के, एक किताब था, वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइंड, जो 1939 में उन्होंने उसको पब्लिश किया था। बाद में उसको फिर आरएसएस ने उसको सर्कुलेट करना बंद कर दिया था। आरएसएस के दफ्तरों में और उनके बुक शॉप्स में हमें किताब नहीं मिलते थे उस समय, क्योंकि उसमें जो बातें कही गई है वो आज आरएसएस भी हिचकिचाहट है उसके कि उसको बताने के लिए, क्योंकि उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है कि हिटलर ने जर्मनी में जिस तरह यहूदियों के मसले को हल किया, हाउ दे सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द जूस, उसे हमें हमारे देश में भी सबक सीखे, हमें भी यही करना चाहिए। उसका मतलब वही गैर हिंदू जो कौम है, मुस्लिम है, ईसाई है, उसके प्रति किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, वो हिटलर के जर्मनी से वो सबक सीख रहे थे और मिसाल बता रहे थे। तो उस गोलवालकर की किताब की जो उन्होंने आलोचनात्मक एक ऐसे था, लंबे ऐसे था, उसको जब उन्होंने छापा तो उससे ही बहुत से लोगों को पता लगा कि आरएसएस का ये हिंदुत्व का जो सोच है, विचार है, उसकी असली चेहरा क्या है। और उसी जो उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से पूरे इस आरएसएस के हिंदुत्व के विचारधारा का विश्लेषण किया, वही उनके पूरे बाद में उनकी राजनीतिक गतिविधियों में, जीवन में उसको खतरा में, जो खतरा उन्होंने देखा, उसके खिलाफ किस तरह हमारे देश में तमाम जनवादी और सेक्युलर ताकतों को लामबंद करके उसके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए, लड़ना चाहिए, वो ये वैचारिक उनकी जो समझ रही हिंदुत्व के बारे में, वो आखिरी दिन तक वही उन्होंने केंद्र बिंदु बनाया कि हमारे देश के सामने अभी जो दक्षिणपंथी सांप्रदायिक फांसीवादी जो ताकतों का खतरा है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए क्या रणनीति और कार्यनीति अपनाना चाहिए, वो उसके बारे में उनकी जो समझ थी, वो उस समय उस तरह के इतने साफ तरीके की समझ किसी और में नहीं था। और तीसरी बात यह है, पहली बात मैंने पार्टी के मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा में उन्होंने जो योगदान किया था उसके बारे में बताया, और अभी दूसरा ये है हिंदुत्व के बारे में उनकी जो समझ बनी, और तीसरा है कि पूरे अपने जीवन में, क्योंकि उनका एक मार्क्सवादी सोच और आधार था, वो हमारे देश में और दुनिया के पैमाने पर हमारी जो लड़ाई है, संघर्ष है, वो साम्राज्यवाद के खिलाफ है।
उसको कभी नहीं भूला उन्होंने। और कॉमरेड अभी विमान बासु ने जो जिक्र किया, वो लंबे समय के लिए हमारे पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के हेड थे, और चाहे वो फिलिस्तीन के संघर्ष हो, चाहे वो क्यूबा के समाजवादी क्यूबा के संघर्ष हो, अमेरिकी साम्राज्यवाद के जो हमला पिछले 6 दशक से रहा है क्यूबा के खिलाफ, चाहे वो वियतनाम में मुक्ति संघर्ष के बाद वहां उनके जो प्रयास रहा है वहां समाजवाद के निर्माण के लिए, उस सब में कॉमरेड सीताराम का सीधा वहां के क्रांतिकारी आंदोलन के साथ, वहां के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उनका बहुत गहरा संबंध था। और उनके मृत्यु के बाद हमारे पास जितना हमारे देश के अंदर से हमें शोक संदेश मिला, उतना ही अंतर्राष्ट्रीय पैमाने से दूसरे देशों के कम्युनिस्ट पार्टियां, वहां के प्रगतिशील संगठन वगैरह, उन्होंने सब मिलके सब ने हमें संदेश भेजा है। ये दिखाता है कि कितना उनका गहरा संबंध रहा है। और सिर्फ क्यूबा या वियतनाम या पैलेस्टाइन का सवाल नहीं है, हमारे ही दक्षिण एशिया के हमारे देश के पड़ोसी देश जो हैं, जैसे नेपाल में, नेपाल के वहां के जनवादी आंदोलन जब वहां चल रहा था राजशाही के खिलाफ, तो सीताराम का वहां के तमाम जो वामपंथी और दूसरे जो जनतांत्रिक ताकतें थी उनके साथ सीधा संबंध रहा। उनके समर्थन में बहुत कुछ उन्होंने काम किया। तो एक अंतर्राष्ट्रीयवादी थे वो। He was an internationalist। और ये कभी ये बात नहीं भूला कि साम्राज्यवाद जो है वो हमारे देश की जनता का और विश्व पैमाने पर जनता का मुख्य दुश्मन है। और आखिरी बात मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे पार्टी के रणनीति प्रोग्राम जो है, और इस प्रोग्राम को के अद्यतन के लिए, अपडेटिंग के लिए जब हमने काम शुरू किया, हमारी पार्टी कार्यक्रम पहले 1964 में हमने बनाया था, फिर 2000 में उसका हमने अपडेटिंग किया इस प्रोग्राम को। तो कॉमरेड सीताराम उस प्रोग्राम कमीशन के सदस्य थे, जो अपडेटिंग के लिए कमीशन हमने बिठाया था। और मुझे पता है कि किस तरह उन्होंने उस कार्यक्रम के अद्यतन के लिए जो कुछ उन्होंने योगदान दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण था। उस समय हमारे पार्टी में बहुत बहस हुई थी, पार्टी के केंद्र कमेटी और पॉलिट ब्यूरो में अंदरूनी बहस बहुत चली। और इतना ऐसे मुद्दे थे, जटिल मुद्दे थे कि हमें, जो हम सोचे थे 2-3 साल में पूरा करेंगे ये काम, अंत में 5-6 साल लग गया, क्योंकि पार्टी में इतनी बहस चल रही थी। और कॉमरेड सीताराम की जो भूमिका है उसमें, मुझे उसमें पूरी तरह मैं उसे जानकार हूं। तो पार्टी की रणनीति और फिर
खास तौर पर जब वो हमारे पार्टी के महासचिव बने, जनरल सेक्रेटरी बने, हमारी जो कार्यनीति है, टैक्टिक्स है, और कॉमरेड सीताराम हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने जब बीजेपी लोकसभा चुनाव जीत के सरकार बना लिया था, मोदी सरकार 2014 में। 2015 में वो पार्टी कांग्रेस में हमारे जनरल सेक्रेटरी बने थे। तो उनके पूरे समय काल जब वो जनरल सेक्रेटरी रहे अब तक, वो हमारे पार्टी का जो टैक्टिकल लाइन है, भाजपा को हराने के लिए, उसको अलग थलग करने के लिए और चुनावी कार्यनीति में मोदी सरकार को हराने के लिए, वो टैक्टिकल लाइन का निर्माण और उसको लागू करने का काम, उसको सक्षम रूप से अमल में ले आने का काम कॉमरेड सीताराम ने, उसकी बड़ी जिम्मेदारी थी उसमें। और अभी कुछ दिन पहले हम दिल्ली में इस तरह के एक व्यापक उनकी स्मृति में सभा किए थे, तो उसमें करीब 1 दर्जन पार्टियों के लोग आए थे जो इंडिया ब्लॉक के पार्टीज के सदस्य थे, लीडर थे। और उनके भाषण से ये पता लगता है कितना महत्वपूर्ण, अहम भूमिका कॉमरेड सीताराम ने अदा की इन सबको एक व्यापक मंच में ले आने के लिए। और मेरे ख्याल में सीताराम के आखिरी ये जो साल रहा है 23-24 का, इतना बहुत उनको सेटिस्फैक्शन मिला होगा कि ये सामूहिक प्रयास में हम भारतीय जनता पार्टी को कम से कम एक सेटबैक मिला है लोकसभा चुनाव में, उसको बहुमत नहीं मिल पाया। और उसके बाद अभी हमारी पार्टी कांग्रेस के लिए तैयारी शुरू की थी जुलाई महीने से। तो कॉमरेड सीताराम का ध्यान इसी पर था कि आगे हमारे लिए हमारी पार्टी की लाइन ऐसे हम तैयार करें जिससे हम हमारे देश में जो अभी जो तानाशाही और सांप्रदायिक और फाशीवादी जो ताकतें हैं जो सत्ता में हैं, उनको और अलग थलग करने के लिए और हराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरह हम काम कर सकते हैं, किस तरह हमारी पार्टी को और शक्तिशाली बना सकते हैं, वामपंथी ताकतों की एकता को कैसे मजबूत किया जा सकता है, और आगे एक वामपंथी और जनवादी विकल्प तैयार करने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए, इन सब बातों पर वो सोचने का काम शुरू कर दिया था। और उनका आखिरी एक निर्णय, हमारे पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग हुई थी 6 अगस्त को, वो अस्पताल में गए 19 अगस्त को, उसमें उन्होंने हमारे पार्टी के पॉलिट ब्यूरो और केंद्र कमेटियों की मीटिंगों का एक टाइम टेबल तैयार किया था, पार्टी कांग्रेस के डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए, राजनीतिक समीक्षा की रिपोर्ट, राजनीतिक हमारे प्रस्ताव जो है, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, ये सब टाइम टेबल उन्होंने तय किया था जब अचानक उनको अस्पताल जाना पड़ा। और अस्पताल में भी जब हम उनको मिलने जाते थे तो अक्सर वही बात उठाते थे कि अभी पार्टी कांग्रेस की तैयारियां क्या क्या होगा, हम कितने दिन यहाँ अस्पताल में रहेंगे। तो हम उनको कहते थे कि कुछ चंद दिनों में ये तो आपका अस्पताल से
डिस्चार्ज होने वाला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, लेकिन उसका यही आखिरी में यही in the last days his worry was what will happen to our preparations for the party congress. तो अंत में I can only say that it is now fallen upon all of us to collectively work to ensure that what Comrade Sitaram wanted to do in the coming days, that we should be able to take up and collectively discharge. This will be the best tribute that we can give our beloved comrade. Thank you.